Hello students, I welcome you all to my new class of topic letter writing. Now let's go. First of all, two type of letter writings are there. Number one, informal letter. So then what is informal letter? The letter to relatives, friends, etc. are called informal letter. Informal यानी कि जो आप अपने रिश्तेदारों को यानी कि रिलेटिव्स को, दोस्तों को, फ्रेंड्स को, मदर्स को, फादर को, अपने फ्रेंड, इनको जो आप लेटर्स लिखते हो, ठीक है, जो पर्सनल लेटर्स होते हैं आपके, वो आपके इनफॉर्मल लेटर होते हैं. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, दैट इज फॉर्मल लेटर. The letter written to shopkeeper, traders, editor of newspaper. This type of letters are the formal letters. ये आपके formal letter होते हैं. But in the 9th and 10th class syllabus, only formal letters are there. So in your syllabus, only formal letters are there. Yes, now we are discussing about the फॉर्मल लेटर. नंबर वन, लेटर टू एडिटर, यानी कि हम जो न्यूज़पेपर में, हो सकता है आसपास कोई सैनिटरी की प्रॉब्लम है, कोई और आपको कोई प्रॉब्लम है, तो यू हैव टू राइट द लेटर टू एडिटर. तो आप जो लेटर है वो एडिटर को लिखोगे. नाउ कम टू द नंबर टू, कंप्लेंट लेटर. कोई भी आप कंप्लेन कर सकते हो. कोई कमेटी की कंप्लेंट हो सकती है, किसी कोई आपने प्रोडक्ट परचेज किया, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कुकर परचेज किया, आपने कोई वॉच परचेज की, आपने मोबाइल परचेज किया, उसका कोई डिफेक्ट आपके पास आता है, मे बी कोई एलईडी हो सकती है, टीवी हो सकती है, और उसमें कोई डिफेक्ट आ गया फॉर एग्जांपल, देन यू हैव टू राइट द कंप्लेंट लेटर एंड दीज आर योर फॉर्मल लेटर. नाउ कम टू द नंबर थ्री, इंक्वायरी लेटर. तो आप किसी तरीके की कोई इंक्वायरी करना चाहते हो, उसके लिए आपको इंक्वायरी लेटर लिखना होता है. एंड नंबर फोर, दैट इज योर ordering letter, order letter, and you have to give the order of book seller. book depot को आप जो बुक्स की जो है ऑर्डर देते हो बुक्स का, वो आपका ऑर्डर लेटर होता है. या कोई स्पोर्ट्स के जो इक्विपमेंट्स है, स्पोर्ट्स के कोई भी आप प्रोडक्ट ऑर्डर देते हो, वो भी आपका, जैसे स्कूल्स में आपको लाइब्रेरी की बुक्स का भी ऑर्डर होता है, तो ये आप ऑर्डरिंग लेटर में आता है. Now come to the format of formal letter, because in your 9th and 10th class only you have the formal letter, not the informal letter. You don't have the informal letter in your syllabus. So in the 10th class also, in the CBSE board also, you have the syllabus of a formal letter. Then how we start the formal letter? Let us say. Now we will start with the left side. First of all, we have to write the sender address. What is sender address? Those who write the letter. जो उस लेटर को लिखता है वो सेंडर एड्रेस होता है. इट्स मीन्स यू हैव टू राइट योर ओन एड्रेस. जो उस लेटर को लिख रहा है उसका सबसे पहले एड्रेस आता है. जैसे फॉर एग्जांपल हाउस नंबर 777, रामनगर, झज्जर. दिस इज द एड्रेस ऑफ सेंडर एड्रेस. नाउ बी केयरफुल. You have to include a mail ID also. अगर for example in the exam mail ID mention है, तो आपको वो भी sender address में ही mail ID भी include करनी है. And for example mobile number is mentioned, you have to write the mobile number also in the sender address. And now be careful, one more important thing. In the sender address you don't write the name. That is the most important thing. In the sender address only you have to write the address only. Don't mention or don't write the name in the sender address. Yes, after sender's address you have to leave one line. Is that clear? Now after leave one line you have to write the date. Is that clear?
Then how to write the date in the letter? It is very important. Only two ways. Then how to write the date? Only two ways is there. First, number one, 16th May 2020. So then most of the students put the comma after May. That is absolutely wrong. So you avoid it. You have to avoid comma after May. Is that clear? You have to write 16th May 2020. That is correct way to write the date. One more thing is here. If you put the comma, where you have to put the comma? Yes, again, listen carefully and watch carefully. May 16th, comma 2020. Now you will ask the question, sir, why? यहाँ पर आपने कॉमा नहीं लगाया, यहाँ पे कॉमा क्यों लगेगा? Yes, it's a very good question. Because here two numerical numbers are there. You can check. Two numerical numbers are there. If when there is two numerical number, you put the comma. That is the point. Okay? अगर यहाँ पर न्यूमेरिकल दो नंबर आते तो ही कॉमा लगेगा. अगर आपने यहाँ कॉमा लगा, आपके हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. तो बी केयरफुल. आप फुल मार्क्स का पेपर करके आते हो, फिर आपको पता चलता है यू गॉट 98, 96. वो आपके मार्क्स कहाँ डिडक्ट होते हैं? वो यहाँ आपके जा रहे होते हैं, यहाँ आपके डिडक्ट हो रहे होते हैं, मार्क्स आपके कट हो रहे होते हैं. तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस. तो यहाँ कॉमा का पूरा ध्यान रखना है. नाउ अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन. उसके बाद अब आपको डेट के बाद एक लाइन, जो ये मैंने एरो लगाए हुए हैं, यू हैव टू लीव वन लाइन. एक और लाइन आपको लीव करके लेफ्ट करके छोड़ के फिर लिखनी है. देन यू हैव टू राइट द रिसीवर एड्रेस. नाउ व्हाट इज रिसीवर एड्रेस? Who got the letter? जिसको वो लेटर मिलता है, जिसको आप वो लेटर लिख रहे हो, उसका एड्रेस अब आपको लिखना है. तो that is mentioned in the letter. लेटर के अंदर मेंशन होता है वो लेटर. तो be careful. तो for example, so please let very careful about it. तो here, जैसे for example, how to write the receiver address? The editor, the Hindustan Times, and for example, Jhajjar. Same thing is here. If the name of the city is mentioned there, you have to write the same city name in the receiver address and in the sender address also. Same city name you have to write. The Hindustan Times. Sometimes in your letter they mention, most of the times मैंने बहुत बार देखा है कि वो लेटर में क्या करते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो नेशनल डेली लिखते हैं. ओके, लास्ट जितने भी सैंपल पेपर्स थे, दे रॉट इन द सैंपल पेपर नेशनल डेली. तो अब बहुत से बच्चे क्या लिख देते हैं, न्यूज़पेपर की इंस्टेड ऑफ न्यूज़पेपर दे रॉट नेशनल डेली, उसकी जगह पे वो लिख देते हैं. वो बिल्कुल गलत है. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. यू हैव टू अवॉइड इट. अगर नेशनल डेली लिखा हुआ है, उसके जगह पे यू हैव टू राइट द Hindustan Time, the Times of India, the Hindu. You have to write any newspaper name. Okay, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम लिखना है, but don't write the National Daily. National Daily आपको नहीं लिखना है. वो आपको कंफ्यूज करने के लिए National Daily लिखेंगे. But you have to be careful about it. Okay. Now next point. Again you have to leave one more line. And then after that you have to write the subject. Yes, the precise topic regarding which the letter is written. तो यानी कि जिस लेटर के ऊपर जो वो एक पर्टिकुलर जो टॉपिक दिया हुआ है, उसी लेटर में से वो टॉपिक आपको निकालना है और you have to write the subject. ध्यान रहे, the subject may be 8 to 12 words only. 8 से 12 वर्ड्स तक ही लिखना है. यू डोंट राइट इन पैराग्राफ्स. बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो पूरा का पूरा कंटेंट निकालते हैं और पैराग्राफ में लिख देते हैं. नो, यू हैव टू राइट एटलीस्ट 1 and 1.5 लाइन. इट्स मींस 8 to 12 वर्ड्स. योर मैक्सिमम वर्ड इज 12 वर्ड्स. इज दैट क्लियर? यस. जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल में आपको लिखा हुआ है, सब्जेक्ट में जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एडिक्शन टू टीवी अमंग स्कूल चिल्ड्रन.
तो ये जो आप एडिटर को लिख रहे हो कि किस तरीके का एडिक्शन है बच्चों में टीवी का, वो आप एडिटर को लिख रहे हो। तो ये देखो आप चेक कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स, मैंने यहाँ पे 6 वर्ड यूज किए हुए हैं। ओके, ऐसे आपको मैक्सिमम जो है 12 वर्ड्स तक आप यूज कर सकते हैं। नाउ अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन, फिर से आपको एक लाइन छोड़नी है और उसके बाद आपको सैल्यूटेशन लिखना है। तो इन द सैल्यूटेशन मीन्स सैल्यूट, यानी कि आप उसको सैल्यूट कर रहे हो। तो सैल्यूटेशन में आपको क्या लिखना है? सर और मैम। वन मोर थिंग इज हियर, यू हैव टू राइट हियर डियर सर, डियर सर और मैम। डियर इज हियर, दिस इज द मोस्ट appropriate formal word in the English language. बहुत सारे बच्चे क्या लिख देते हैं यहां पर? Respected sir, respected. तो most of the students क्या लिखते हैं यहां पर? Respected sir. सर का मीनिंग ही रिस्पेक्ट होता है, but you have to write here respected sir. Don't write respected sir. The most appropriate formal word is dear sir. तो you have to write here dear sir और मैम। ये स्लैश में मैम मैंने क्यों लिखा है? फॉर एग्जाम्पल इन द कंटेंट, अगर क्वेश्चन में लेटर में हमें नहीं पता चल रहा है कि वहां पर सर है या मैम है, देन यू हैव टू राइट बोथ सर और मैम। अगर आपको कंफर्मेशन है, कंफर्म हुआ कि सर है, देन यू हैव टू राइट डियर सर। अगर आपको कंफर्म है कि मैम है या मैडम है, तो आप यहां पर मैडम भी लिख सकते हो। अगर आपको कंफर्मेशन नहीं है, इफ यू हैव कंफ्यूजन यू हैव, then you have to write the dear sir or ma'am, both you have to write dear sir slash madam. Then again you don't leave the line. अब आपको लाइन नहीं छोड़नी है, इसका मतलब अब सैल्यूटेशन के बाद में आपको लाइन नहीं छोड़नी है। Now you have to write the body of the letter. अब आपकी जो बॉडी ऑफ द लेटर में आपको कैसे क्या ध्यान रखना है, वो अब आपको पॉइंट बाय पॉइंट मैं समझा रहा हूं। So it means in the first paragraph, what you have to write? Introduce yourself and the purpose of writing. तो first जो आप पैराग्राफ में लिखोगे, अपने आप को आपको इंट्रोड्यूस करना है, अपने बारे में लिखना है, और उस टॉपिक में जो आपको लेटर जिस बारे में आप लिख रहे हो, किस वजह से लिख रहे हो, क्या आपका उद्देश्य है, क्या आपका पर्पस है, क्या आपका रीजन है, वो आपको उसके बाद में लिखना है इन द पैराग्राफ नंबर 1। नाउ come to the paragraph number 2. Now paragraph number 2, detail of the topic, यानी कि जो reasons हैं, जो measures हैं, यानी कि जो उसको आपको थोड़ा डिटेल में, it means you have to use 4 to 5 lines. It means in the paragraph 1 also you have to use 3 to 4 lines, and in the paragraph number 2 also you have to use the 3 to 4 lines. It means maximum your word limit is 80 words. Means 80 words, means 80 to 100 words you have to use. Is that clear? In the letter you have to use, in the body of the letter, 80 to 100 words you have to use. Now second paragraph, detail of the topic. It means you have to mention the reason, you have to mention the measures also. किस लिए आप लिख रहे हो, वो टॉपिक के बारे में कुछ लाइन आपको मेंशन करनी है, समझाने के लिए एडिटर को या जिसको भी आप लिख रहे हो उसको बताने के लिए। नाउ वी कम टू द पैराग्राफ नंबर 3। इन द पैराग्राफ नंबर 3, कंक्लूजन और क्लोजिंग, एंडिंग। अब आपको वो लेटर क्लोज करना है, तो उसको क्लोज करने के लिए यू हैव टू यूज 2 to 3 लाइन। अब आपको उसको क्लोजर देना है, अब उसको एंडिंग करना है, उसके लिए आप 2 to 3 जो है लाइन यूज कर सकते हैं। Now, thanks and thank you also and thanking you also. So according to me, thanking you or thanks you have to write. Okay, that is before your complimentary close, and after body of the letter you have to write thanking you and thanks also. Now मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहां पे आपके मार्क्स हमेशा डिडक्ट होते हैं, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चों के भी मार्क्स डिडक्ट होते हैं सीबीएसई में, वो क्या चीज है? नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, 7th, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग क्या होता है? यहां पर बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं।
इसका मतलब यहाँ पर मिनिमम हाफ से 1 मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं. नाउ यू हैव टू राइट हियर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में योर्स ट्रूली, सिंसियरली, और यू हैव टू राइट वन मोर, फेथफुली. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में फॉर्मल लेटर में आपको योर्स ट्रूली लिखना है. ध्यान रहे, बी केयरफुल हियर. जो आपका ट्रूली है, ट्रूली का जो टी है, यू हैव टू यूज द स्मॉल लेटर हियर. योर्स का वाई जो है वो कैपिटल लेटर होगा, बट ट्रूली का जो टी है स्मॉल लेटर. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको कैपिटल कर देते हैं, वहां पे आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाता है. तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट. ट्रूली का टी आपको स्मॉल लिखना है. वन मोर थिंग, इफ यू राइट द सिंसियरली, अगर आप सिंसियरली लिख रहे हो तो वहां का जो फर्स्ट एस है यू हैव टू राइट इन स्मॉल लेटर. अगर ये कैपिटल लिखते हो फिर आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा. फेथफुली का भी आप चेक कर सकते हो, यू हैव टू राइट द स्मॉल लेटर, डोंट राइट द कैपिटल लेटर. तो बी केयरफुल. देन अबाउट आफ्टर योर्स ट्रूली और सिंसियरली यू हैव टू राइट द पुट द सिग्नेचर हियर. ये भी एक ऑप्शनल है, लेकिन सीबीएसई के अंदर आप सिग्नेचर कर सकते हैं. ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आप करें ना करें. लेकिन जब हमें चीज का मालूम है, यू हैव टू पुट द सिग्नेचर. इट्स द ऑप्शनल केस, बट यू हैव टू पुट द सिग्नेचर हियर. सिग्नेचर. देन यू हैव टू राइट द नेम. जो भी नेम उसमें लेटर में मेंशन है, यू हैव टू राइट दैट नेम. अगर मेंशन नहीं है, यू हैव टू राइट द फेक नेम. कोई और नाम आप लिख सकते हैं, लेकिन यू हैव टू राइट द नेम हियर. अगर उसमें कोई डेजिग्नेशन है, वो भी आप यहां पर मेंशन कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, कोई मॉनिटर है, कोई स्पोर्ट्स इंचार्ज है, कोई कंप्लेंट अगर आप करें, कोई बुक सेलर का, कोई डिपो का, जो भी आप स्कूल इंचार्ज हो, जो भी है, वो आप डेजिग्नेशन भी उस नेम के नीचे मेंशन कर सकते हो, इफ इट इज रिक्वायर्ड और इफ इट इज मेंशन इन द लेटर. लेटर के अंदर वो मेंशन है तो आप लिखें. तो नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स write the spelling of truly and sincerely always wrong most of the time. Then you have to write they wrote TRUELY. हमेशा मैंने देखा है बच्चे TRUE लगा देते हैं यहाँ पर, तो be careful about it. और sincerely में SINCERLY, ये जो E है ये मिसिंग हो जाता है. तो ये आपको ध्यान रखना है. ट्रूली की स्पेलिंग और सिंसियरली की स्पेलिंग यू हैव टू राइट करेक्ट इन द बोर्ड एग्जाम. एंड द लास्ट वन मोर थिंग इज हियर योर्स, YOURS. most of the students put the apostrophe s here. don't put the apostrophe s here. that is absolutely wrong. okay, यहां पर आपको apostrophe s से और r से पहले apostrophe s नहीं लगाना है. डोंट पुट द apostrophe s here. बिना apostrophe s के आपको yours लिखना है. अगर apostrophe s लगाते हो तो आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा. सो बी केयरफुल. ये स्पेलिंग्स आप जो है ध्यान रखो. जो मैंने आपको बताया अप टू डेट यही फॉर्मेट आप लिखो. यू गॉट 10 out of 10. आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं. ओके एंड और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, यू कैन कमेंट इन माय चैनल Sharma classes. Thank you very much.